Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today topic is DNA replication. Gene is a information transfer. As you know, the genetic information is stored in the form of DNA. For example, this is gene A, gene B, gene C. This is a double helix DNA which transfers information about the processing of protein A, protein B, and protein C. A gene is the sequence of the nucleotide within a portion of a DNA that codes for a peptide or functional RNA. Gene is that sequence of a nucleotide in DNA which codes for a proper peptide or functional RNA or proper protein. Sum of the all gene is known as genome. DNA. What is DNA? You see in the picture the dividing cell and non-dividing cell comprised of a gene. In non-dividing cells, nucleus is a chromatin found, protein DNA complex around the histone protein DNA complex is around, chromosome formed during the cell division, duplicate tubule a set of full set in the daughter cells. यही क्रोमोसोम पे डुप्लीकेट हो जाता है एंड एंटर द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द डॉटर सेल्स. Now the organization of the chromatin. How chromatin organized? DNA is the double helix DNA winds around the core particle to form nucleosomes, which is 11 nanometer in diameter. Number 3 point. Nucleosomes fold according like into the zigzag fiber 30 Newton meter in diameter. फिर यही न्यूक्लियोसोम फोल्ड आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ zigzag. Number 4, 30 Newton meter fiber is thrown into the irregular loops to form a fiber 300 Newton meter thick. Number 5, in dividing cells, loop chromatin coils further into a 700 Newton meter fiber to form each chromatid. Number 6 point, chromosomes at the midpoint metaphase of the cell division. ये मेन पॉइंट है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमेटिन के डीएनए इज द डबल हेलिक्स. फिर डीएनए वाउंड होता है अराउंड द कोर प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन. फिर न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है जो कि 30 न्यूटन मीटर डायमीटर में होता है. फिर यही 30 न्यूटन मीटर डायमीटर जो है ना इरेगुलर फोल्ड्स में लूप्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इन द डिवाइडिंग सेल्स ये कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम फॉर्म में क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में और फिर ये इसी से क्रोमोसोम प्रॉपर बनता है. टू क्रोमेटेड coil around at the metaphase phase of the cell division form into the chromosome, proper chromosomes. Thread-like chromatin. There are 46 number of DNA molecules and associated protein in human. In non-dividing state, the DNA molecule compact coil around the co-particle histone protein zigzag looped and coiled onto itself. Preparing to divide, DNA copies itself to form two parallel sister chromatids. ये वन क्रोमोसोम है जो कि एन डुप्लीकेटेड फॉर्म में है. वन क्रोमेटेड है ये देख लें नंबर बी फिगर में. इट्स सिस्टर क्रोमेटेड फॉर्म व्हेन वन क्रोमेटेड एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटेड कंबाइंड फॉर्म वन क्रोमोसोम. Replication occur during the S phase of the cell cycle. रिप्लिकेशन जो होता है वो स्पेशली इस फेज़ ऑफ द सेल साइकिल में स्टार्ट होता है. प्रॉपर सेल बनने के बाद फिर ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होता है जो कि G1 फेज़ होता है. पीरियड ऑफ द सेल ग्रोथ बिफोर द डीएनए इज डुप्लीकेटेड. फिर इस फेज़ में एंटर होता है जो कि इंटरफेज भी इसे कहते हैं. इस पीरियड व्हेन द डीएनए इज डुप्लीकेटेड डेट इज़ व्हेन द क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड. फिर G2 फेज़ स्टार्ट होता है. पीरियड आफ्टर द डीएनए इज डुप्लीकेटेड सेल प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन. यहाँ पे सेल प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाता है G2 फेज़ पे सेल डिवीजन के लिए. फिर एंटर होता है सेल डिवीजन में जो कि माइटोसिस है जो कि कंपोस्ट होता है आप लोग जानते हैं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज में. फिर लास्ट में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर सेल जो है ना प्रॉपर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है. Timing of the cell cycle. G1 phase longest. Average time is the 18 to 24 hours. Normal growth and metabolism protein needed for the DNA synthesis synthesized. यहाँ पे proper DNA synthesized होता है जिसके लिए प्रोटीन चाहिए होता है. नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म सेल में रन होता है और ये लॉन्गेस्ट पीरियड है 18 to 24 आवर. देन एस फेज़ जो कि कंपोज होता है 8 to 10 आवर्स पे जहाँ पे DNA रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है.
Then G2 phase 4 to 6 hours replicating centrioles and synthesizing enzyme for the cell division. यहाँ पे सेल को प्रॉपर सेल डिवीजन के लिए कंडीशन प्रिपेयर किया जाता है, सेंट्रियोल डिवाइड होता है और सिंथेसाइजिंग एंजाइम जो है ना डेवलप होते हैं. एम फेज 1 to 2 hours लॉन्ग. DNA replication is the process in which the DNA within the cell make an exact copy of itself. DNA replication में exact copy बनती है क्रोमोसोम की. Why does DNA replicate? The answer is during which the phase of the cell cycle does DNA replicate? ये देख ले DNA replication model. सेल इसलिए रिप्लिकेट होता है ताकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो टूवर्ड्स द डॉटर सेल. और विच टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है? डेट यू नो इन द एम फेज पे फिर माइटोसिस प्रॉपर जो है ना स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन मॉडल को देख ले. फर्स्ट है कंजर्वेटिव, वुड लीव द ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड टेक एंड कॉपी इट. यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रैंड वही फॉर्म में होता है और फिर एक से एग्जैक्ट एक कॉपी बनती है. फर्स्ट फिगर में देख लें कि एक येलो स्ट्रैंड बना है जो कि ओरिजिनल स्ट्रैंड के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है. दूसरा ब्लू स्ट्रैंड बना है जो कि न्यू स्ट्रैंड इससे डेवलप हुआ है. Then dispersive would produce two DNA molecule with section of both old and new along each strand. सेकेंड वन में डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन में देख ले कि यहाँ पे कुछ पार्ट जो है ना ओल्ड वन का और कुछ पार्ट जो है ना न्यू वन का सिंथेसाइज होता है. तो ईच स्ट्रैंड में दोनों पार्ट्स दोनों के पोर्शन मौजूद होते हैं डिस्पर्सिव फॉर्म में. देन सेमी कंजर्वेटिव वुड प्रोड्यूस डीएनए मॉलिक्यूल विद बोथ वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड. फिर सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन में वन स्ट्रैंड जो है ना डॉटर सेल में ओल्ड वन होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है था वो न्यू वन होता है. तो एक ओल्ड और दूसरा न्यू में कंपोज्ड होता है. ये देख लें कि ये रिप्लिकेशन मॉडल है कि पेरेंटल डीएनए डबल हेलिक्स रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है और सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ DNA replication mostly occur in most cells. Daughter DNA is a double helix within one parent strand and one new strand. Found that one strand serve as a template for the new strand. मतलब कि एक स्ट्रैंड जो है ना एज ए टेम्पलेट काम करता है फॉर द न्यू वन की सिंथेसाइजिंग के लिए. यहाँ पे प्रॉपर एंजाइम चाहिए होता है इसकी रिप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए. मसलन हमारे पास पेरेंट सेल में डबल स्ट्रैंडेड DNA हो गया. इसको अनवाउंड करने के लिए क्योंकि ये तो लूप्स में कन्वर्ट होता है तो इसको पहले अनवाइंड करने के लिए हेलिकेज अनवाइंड DNA एंजाइम चाहिए होता है. DNA हेलिकेज आता है, ये ब्लू फॉर्म में देख लें, ये अनवाउंडिंग स्टार्ट करेगा. हेलिकेज अनवाउंड द डबल हेलिक्स स्टार्टिंग एट ए रिप्लिकेशन बबल्स. ये रिप्लिकेशन बबल स्टार्ट कर लेगा और ये अनवाउंडिंग स्टार्ट कर लेगा. द टू स्ट्रैंड सेपरेट एज द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर आर ब्रोकन. हाउ डबल स्ट्रैंड वुड मूव अवे from each other, the double bond, the hydrogen double bond present and triple bond present between the base pair will be broken down. Two replication forks form and the DNA is unwound in opposite direction. दोनों साइड पे replication forks बन जाएंगे और DNA unwound in opposite direction would start. अच्छा, फिर हेलिकेज एंजाइम के बाद बारी आती है SSB single strand binding protein stabilize the DNA. Helicase has completed during unwinding the DNA strand, then the single strand binding protein SSB keep the two strand from annealing coming back together. अब तो ये स्ट्रेस जो है ना ख़त्म हो गया है, ये अनवाउंडिंग जो है ना ख़त्म हो गया. हेलिकेज एंजाइम ने इसको सेपरेट आउट किया. दोबारा इसकी अनीलिंग से बचाने के लिए SSB प्रोटीन आता है, वो स्टेबलाइज करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को. फिर topoisomerase relieves the stress on the twisted DNA. Topoisomerase enzyme which relieves the stress on the DNA module by allowing free rotation around a single strand. ये अलाउ करता है फ्री रोटेशन को. ये देखो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, ये स्ट्रेस को रिलीज करता है. फिर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है कि कहाँ से रिप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है. ये रिप्लिकेशन है साइट वेयर द रिप्लिकेशन बिगिन. हर एक सेल में प्रॉपर जो है ना साइट्स होते हैं रिप्लिकेशन के लिए. मसलन एशरिका कोलाई में सिर्फ वन रिप्लिकेशन साइट होता है. इन ह्यूमन 1000 साइट्स आर अवेलेबल इन ह्यूमन. Strands are separated to allow the replication machinery contact with the DNA. Many AT base pair because easier to break 2
हाइड्रोजन बॉन्ड देन दे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो है ना मेनली 80 बेस पेयर जो है ना जल्दी ब्रेकआउट होता है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड ये इजी ब्रेक होता है एज़ कम्पेयर टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, फिर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो है ना, फिर वहाँ से रिप्लिकेशन बबल स्टार्ट हो जाता है। 100 साइट्स टू थाउजेंड्स ऑफ द रिप्लिकेटिंग बबल्स इन यूक्रियोटिक सेल में 100 से लेकर 1000 तक रिप्लिकेटिंग बबल जो है ना डेवलप हो जाते हैं। सिंगल रिप्लिकेशन फोक जो है ना वो फाउंड इन बैक्टीरिया। ये देख लीजिए रिप्लिकेशन बबल्स इसी तरह स्टार्ट हो जाते हैं। Replication fork is a Y-shaped region of a replicating DNA molecule where the new strands are growing. फोक बनने के बाद जो है ना न्यू स्ट्रैंड जो है ना ग्रोइंग स्टार्ट करेगा। ये देखिए पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है और इसको जो है ना वाई शेप में रिप्लिकेशन फोक में कन्वर्ट किया गया है। ये देख ले रिप्लिकेशन फोर्स है इसमें। बाई डायरेक्शनल मोमेंट ऑफ द डीएनए रिप्लिकेशन मशीनरी। ये बाई डायरेक्शनल मोमेंट होता है रिप्लिकेशन मशीनरी में, दोनों साइड से ये रिप्लिकेशन फोक्स जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं। Each strand of the parent DNA is used as a template to make the new daughter strand. हर एक जो है स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट रोल करता है न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए। डीएनए रिप्लिकेशन मेक्स 2 न्यू कंप्लीट डबल हेलिकेज ईच विद 1 ओल्ड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। डीएनए रिप्लिकेशन जो है ना ये अवेलेबल करता है 2 एग्जैक्ट कॉपी को, जो कि 1 स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और दूसरा जो है ना ये डॉटर होता है। प्राइमेज सिंथेसिस प्राइमर, फिर जो है ना प्राइमिंग होती है। RNA primer are the short oligonucleotides before new strand DNA can form, and there must be small pre-existing primer RNA present to start the addition of a new nucleotide. डॉटर डीएनए फिर किस तरह बनता है? आरएनए प्राइमर्स शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ये आके न्यू स्ट्रैंड के साथ जो ओन स्ट्रैंड होता है उसके साथ बाउंड होता है न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए। So, pre-existing primers RNA present to start the addition of new nucleotide. Primase enzyme date polymerase synthesis the RNA primer. Polymerase enzyme RNA primers को synthesize करता है। फिर डीएनए पोलीमरेज क्या चीज़ है? आरएनए प्राइमर तो प्राइमर बना लेता है, वही प्राइमर ने एड अप होना है किसके साथ? जो ऑल वन स्ट्रैंड के साथ बाइंड होना है उसी न्यूक्लियोटाइड्स को टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रैंड। तो इसको मूव करने के लिए डीएनए पोलीमरेज चाहिए। एन एंजाइम डेट कैटलाइज द एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग चेन डीएनए चेन। न्यूक्लियोटाइड एंटर एज ए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे देख लें कि प्राइमर जो है ना आरएनए प्राइमर को एडअप करता है और इसके साथ जो है ना न्यूक्लियोटाइड में ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड बनाता है। 3 prime OH of the sugar attack first phosphate of the triphosphate bond on the 5 carbon of the new nucleotide, releasing pyrophosphate plus energy। साथ ही साथ पायरोफॉस्फेट और एनर्जी भी रिलीज होती है और इसी तरह न्यूक्लियोटाइड ने आगे एक दूसरे के साथ ज्वाइन होना है। बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स करेक्ट मिस्टेक इन बेस पेयरिंग। यही पॉलीमरेज जो है ना बाई डायरेक्शनल में डीएनए डबल हेलिक्स को तो बना रहा होता है, साथ ही साथ जो है ना बेस पेयरिंग में जो मिस्टेक्स होती है उसको भी करेक्ट करता है। रिक्वायर्ड एन एस्टेब्लिश पॉलीमर स्मॉल आरएनए प्राइमर बिफोर एडिशन ऑफ ए मोर न्यूक्लियोटाइड। अदर प्रोटीन एंड एंजाइम आर नेसेसरी, जो कि प्रोफ्रीडिंग और मिस्टेक्स को रिमूव करता है। फिर जो है ना लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज एज ए सिंगल पॉलीमर इन द 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। लीडिंग स्ट्रैंड बन जाता है इसी तरह 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। आरएनए प्राइमर एड अप हो रहे होते हैं, ब्लू कलर में डीएनए पॉलीमरेज इसको ऐड कर रहा होता है उन्हीं न्यूक्लियोटाइड को जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं फ्रेश वन। आरएनए प्राइमर जो है ना मूव हो रहा होता है अलॉन्ग द 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। फिर लेगिंग स्ट्रैंड बनता है। लेगिंग स्ट्रैंड आल्सो सिंथेसाइज इन द 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन बट डिसकंटिन्यूसली अगेंस्ट ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। वो तो कंटिन्यूसली लीडिंग स्ट्रैंड में एडअप हो रहे होते हैं न्यूक्लियोटाइड, लेकिन लेगिंग स्ट्रैंड में ये डिसकंटिन्यूसली जो है ना ज्वाइन होते हैं।
इसी तरह कई कई जगहों पे ये बाउंड करेंगे। फिर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट सीरीज ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स ऑन द लेकिंग स्ट्रैंड, क्योंकि लेकिंग स्ट्रैंड में जो है ना ये पार्ट्स में जो है ना जगह जगह पे बाइंड होते हैं, इसी वजह से वहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जिसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये देख लें, एक छोटा सा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है। जब फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं तो इसने एक दूसरे के साथ फिर ज्वाइन भी होना है। Then it required DNA ligase enzyme. DNA ligase, a linking enzyme that catalyzes the formation of equivalent bond from the 3' to 5' end of joining strands. Example, joining two Okazaki fragments together. ये देख ले, Okazaki fragment को DNA ligase पर बाउंड करता है एक दूसरे के साथ। Mistakes, base pairing rules must be maintained. Mistake, the genome mutation may have consequences on the daughter cell. If these mistakes are not removed, it has a proper consequence on the daughter cells. Only correct pairing fed the polymerase active sites. If wrong nucleotide is included, polymerase uses its proofreading ability to cleave the phosphodiester bond of the improper nucleotide, activity 3' to 5', and then add the correct nucleotide and proceed down the chain again in the 5' to 3' direction. ये खुद जो है ना प्रोफरीडिंग मैकेनिज्म इसमें होता है, और ये प्रोफरीडिंग मैकेनिज्म डीएनए पॉलीमरेज रोल प्ले करता है इसमें। डीएनए पॉलीमरेज इनिशियली मेक्स अबाउट 1 leg base pairing error. Enzyme proofread and correct these mistakes. The new error rate for the DNA that has been proofread is 1 in 10 billion base pairing error. 1 बेस पेयर प्रोफरीड करता है। डीएनए पॉलीमरेज असल में ये प्रॉपर को एडअप कर रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जब मिस्टेक हो जाते हैं तो ये प्रोफरीडिंग पे स्टार्ट कर देता है। 1 in 10 billion बेस पेयर में ये एरर को रिमूव करता है। ए म्यूटेशन अकर इन जर्म सेल्स, सेक्स सेल इनहेरिटेड डिजीज़, ये फिर डिजीज़ इनहेरिट करेगा अगर जर्म सेल में ये म्यूटेशन काज हो गया। एंड सोमेटिक सेल रेगुलर सेल्स में ये कैंसर डेवलप करता है। ये देख लें कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे एडिनिन की जगह थायमीन ऐड हुआ है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन में, फिर ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ म्यूटेड बीटा ग्लोबुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये सिकल सेल एनीमिया काज करता है। रिमूवल ऑफ प्राइमर्स, अदर एंजाइम नीडेड टू एक्साइज रिमूव द प्राइमर, फिर यही प्राइमर को फिर रिमूव भी होना है। न्यूक्लियस, रिमूव द आरएनए प्राइमर न्यूक्लियोटाइड बाय द न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियस एंजाइम आता है। जब ये प्राइमर जो है ना ये ऐड कर लेते हैं तो फिर इसको रिमूव करने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम आता है। रिपेयर पॉलीमरेज रिप्लेसेस आरएनए विद डीएनए, रिपेयरिंग के लिए रिप्लेस करेगा आरएनए को डीएनए के साथ, फिर क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ने ये प्रोफरीडिंग करना है इसीलिए ये रिप्लेस करेगा आरएनए प्राइमर को विद डीएनए। देन डीएनए लाइगेज आता है, सील द शुगर फॉस्फेट बैक बॉन्ड बाय क्रिएटिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड रिक्वायर मैग्नीशियम एंड एटीपी। डीएनए लाइगेज पर आता है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि रिक्वायर करेगा मैग्नीशियम एंड एटीपी को। अदर नेसेसरी प्रोटीन आर हेलिकेज ओपन द डबल हेलिक्स एंड हेल्प इट अनकॉयलिंग, ये डबल हेलिक्स को जो है ना सब अनकॉयलिंग से बचाता है हेलिकेज। स्लाइडिंग क्लेम सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज हेल्प पॉलीमरेज स्लाइड अलोंग द स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी आप लोगों ने इससे पहले इसमें पढ़ा। ये क्या करता है, कीप द स्ट्रैंड सेपरेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये पर स्लाइडिंग क्लैंप है, ये भी सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज है, ये भी हेल्प करता है पॉलीमरेज साइट को। अच्छा, all are coordinated one another to produce the growing DNA strand protein mechanism। ये सारे जो है ना एंजाइम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है और ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है ताकि ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड बने प्रॉपर। ये देख लें, ये एक ओवरऑल पिक्चर है कि किस तरह ये न्यू स्ट्रैंड से तसाइज होता है ओल्ड स्ट्रैंड से। यहाँ पे ये देख ले स्लाइडिंग क्लैंप बने हैं रेड और ब्लू कलर में। ये क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज के साथ बाउंड करके इसको मूव करता है अलोंग द टेम्पली स्ट्रैंड। ये देख ले कि किस तरह डीएनए हेलिकेज क्या करता है। ये ब्लू कलर में प्राइमेज है,
ये डीएनए हेलिकेज है, ये आरएनए प्राइमर है, और न्यू इजोकजो की फ्रेगमेंट्स बनते हैं। सही। सो दिस इज़ द ओवरऑल picture, and this is the overall lecture of the DNA replication.